Hello everyone, welcome to this video. Today we are discussing the question answer of your class 9th chapter, The Little Girl, that is third chapter. Now first given below the some emotions that Kajia felt. Match the emotion in column A with the item in column B. A में कुछ इमोशंस दिए गए हैं, उनको कॉलम बी के साथ में हमें मैच करना है. सो दीज आर द आंसर्स. फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट आपको दिया है फियर और टेरर. तो फियर और टेरर वो किससे डरती थी, किस चीज़ को लेकर? तो फादर्स नेम होम, स्पीकिंग टू दैट हर, गोइंग टू बैड, और व्हेन alone at home, father stretched out on the sofa snoring. These are the feelings that has to be shown about the fear or terror. Now in the second glad sense of the relief, father comes into her room to give her a goodbye kiss. And the second one is the noise of the carriage grows fainter. And the third one is a funny reeling, perhaps of understanding. It means a father comfort and tales asleep. The next question, answer the following question in one or two sentences. The first question is, why was Kazia afraid of her father? That why she was afraid with her father. So answer is, Kazia was a little sensitive girl. Her father was aggressive and always spoke loudly. He always scolded her. He used to beat her even when she accepted her mistake. He never played her with her. This made her afraid of her father. The next question is, who were the peoples in Kajia's family? काजिया की फैमिली में कौन कौन थे? तो Kajia's family consists of her mother, father, grandmother and herself. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज काजिया's फादर्स रूटीन? उनके फादर का जो रूटीन है वो क्या था? तो फर्स्ट इसमें है, before going to his office, Kajia's father usually went into her room to give her a casual kiss. After coming back from his office, he ordered tea to brought into the drawing room. He also asked his mother to bring him newspaper and his slipper, and Kajia's to pull off his boots. Third, that has to be usually he can do, that is on Sundays, Kajia's father would stretch out on the sofa. He would over his face with a handkerchief, put his feet on one of the cushion and sleep soundly. The next question is, in what ways did Kajia's grandmother encourage her to get to know her father better? कि काजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो काजिया को हमेशा एनकरेज करती थी. किस तरीके से एनकरेज करती थी? ताकि वो अपने फादर को और अच्छे से जान सके. तो काजिया's grandmother encouraged her to get to know her father better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sundays. यानी संडेज़ में जब उसके पेरेंट घर में रहते हैं, then she will push her that she will move in the drawing room and she will talk to them regarding all the queries. She also suggested Kazia to make a pin cushion out of a beautiful piece of yellow silk as a gift for her father's birthday. The next, discuss these questions in the class with your teacher and write down your answer into 2 to 3 paragraph. It means that these are the long answer questions. So first we have to discuss the first question. Kazia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि काजिया जो अफर्ट करी थी टू प्लीज़ हर फादर, अपने फादर को खुश करने के लिए, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम इन वेरी मच, जिससे कि वो उसके फादर खुश नहीं होते हैं. उसका परिणाम ये होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं. हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे होता है? तो काजिया's efforts to please her father resulting in displeasing him, कि उसने जो कोशिश की अपने फादर को खुश करने के लिए, लेकिन वो नाखुश हो जाते हैं. ऑन एवरी संडे, हर रविवार को, हर ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हर अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर. कि हर संडे को उसकी दादी जो है उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मदर और फादर से बात कर सके. बट हर प्रेजेंस ऑलवेज इरीटेट द फादर. लेकिन जब भी वो वहाँ पे होती तो उसके फादर इस चीज़ से नाराज़ होते थे. ही यूज़ टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल. वो हमेशा उसको जो है लिटिल ब्राउन आउल के नाम से बुलाते थे. वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वुड बी नेक्स्ट वीक. एक दिन उसकी दादी ने उसे बोला कि अगले सप्ताह में उसके पापा का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड दैट शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन
फॉर ब्यूटिफुल गिफ्ट, वो उसके लिए क्वेश्चन ब्यूटिफुल गिफ्ट के रूप में लेके आए. आफ्टर स्टिचिंग 3 साइड्स ऑफ द cushion with double cotton with a great care and efforts, Kazia was stuck as to what to fill the cushion with. Since her grandmother was busy in the garden, she searched for her mother's bedroom for scraps. Finally, she discovered sheets of paper on the bed table. She gathered these, tore them into and filled the cushion with the torn pieces. तो उसने पेपर के सारे टुकड़े जो है वो कुशन के अंदर डाल दिए. अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट्स टू प्लीज़ हर फादर, तो उसके पापा को खुश करने के लिए उसने जितने भी प्रयास करे थे ओनली वेंट इन वेन, वो सब दुख में बदल जाते हैं. बट ऑल्सो हैड एन anticipated consequence. This was because the sheets she had torn were her father's speech for the port authority, क्योंकि वो उसके फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी थी वहाँ पे जो स्पीच उनको देनी थी उसके पेपर्स थे जो उसने फाड़ के उसके अंदर डाल दिए. हर फादर स्कोल्ड हर फॉर टचिंग थिंग्स, उसके फादर ने उसे डांट लगाई कि वो उनकी चीज़ों को ना छेड़े. दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो उसके साथ जो उसको बिलोंग नहीं करती हैं. एंड पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पाम विद अ रूलर, और उसकी हथेली पे जब स्केल से उन्होंने पिटाई की और उसको पनिश भी किया. काजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम काजियाज फादर. काजिया ये सोचती है कि सब जो फादर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो किस तरह के फादर हैं और वो उसके फादर से किस तरह से डिफरेंट है. काजिया कंपेयर हर फादर विद मिस्टर मैकडोनल्ड. हर नेक्स्ट डोर नेबर जो उनके पड़ोसी थे, ही वॉज अ लविंग जेंटल एंड फॉर गिविंग फादर, वो बहुत ही बच्चों को प्यार करने वाले थे, दयालु थे और हर चीज़ गलती को माफ़ करने वाले फादर थे. ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और अपने बच्चों के साथ खेलते थे. ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर, वो अपने बच्चों को जो है दोस्त की तरह से ट्रीट करते थे. ही वॉज जस्ट अपोजिट टू द काजियाज फादर, वो काजिया के फादर से बिल्कुल अलग थे. अनलाइक काजियाज फादर, ही नेवर पनिश हिज चिल्ड्रन, वो काजिया के फादर की तरह अपने बच्चों को पनिश नहीं करते थे. ही प्लेड विद दैम, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे. वेन एवर ही वॉज फ्री, वो जब भी फ्री होते थे. काजियाज फादर वॉज वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, वो बहुत ही डिसिप्लिनर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और रूड नेचर के थे काजिया के फादर. हाउ डज काजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग हु नीड्स हर sympathy. So, with her mother and grandmother at the hospital, Kazia is left at home in care for Alice, the cook. At night, after she is put to bed by the cook, she has a nightmare. उसे सपना आता है. She calls for her grandmother, but to her surprise, she finds her father standing near her bed. लेकिन उसे सपने में आश्चर्य होता है कि उसके फादर उसके साथ में हैं. He takes in his arm and makes her sleep नेक्स्ट टू हिम, और उन्होंने उसको अपने बाजू में भर के अपने पास सुलाया. हाफ स्लीप शी क्रिप्स क्लोज टू हिम, स्नगल हर हैड अंडर हिज आर्म, वो उनके बाजू के अंदर अपना सिर छुपा लेती है. एंड होल्ड्स टाइटली टू हिज शर्ट. हर फादर आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट विद हिज लेग्स ऑन for warmth. Her father goes off to sleep before her. This makes her understand that he has to work very hard every day, and this leaves him too tired to be like Mr. McDonald. She expresses her altered feeling for her father by telling him that he was a big hurt, और वो उनको बताती है कि किस तरह से उनका दिल जो है वो काफ़ी बड़ा था. Now these are the questions that are related to your thinking and language. The first question is, use an appropriate word from the synonyms given in the following sentences. It means that these few words are giving us just like extremely pleased and excited about. So इनके synonyms, इनके पर्यायवाची हमें यहाँ पे लिखने हैं. क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट वर्ड इज, आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी. एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत खुश होते हैं तो उसे हम थ्रिल्ड कहते हैं. TH, ये स्पेलिंग यहाँ पे आपको आंसर में दिया हुआ है, थ्रिल्ड. द नेक्स्ट वन इज, आई वॉज डैश, तो हो गया थर्ड. वी आर स्टार्टिंग विथ थर्ड. The first one is here. She was dashed by the news of her brother's
वेडिंग, वो अपने ब्रदर की शादी को लेकर बहुत खुश थी, तो उसके लिए वेरी प्लीज, बहुत खुश होना, थ्रिल्ड। सेकंड है आपका आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, दैट इज़ डिलाइटेड। शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, एक्सट्रीमली हैप्पी, जैसे वो अपने ग्रैंड डॉटर के बर्थ पे बहुत ज़्यादा खुश थी, तो खुश होना मतलब जॉय, एंड बहुत ज़्यादा खुश होना ओवर जॉय। फोर्थ है द कोच वॉज डैश विद हिज परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड अबाउट, संतुष्ट होना मतलब प्लीज्ड होना। शी वॉज वेरी डैश विद हर रिजल्ट्स, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैपन, कुछ चीज़ें जो घटती हैं उनके लिए खुश होना, तो वो उसके रिजल्ट के लिए खुश थी, तो हैप्पी। स्टडी द यूज़ ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये क्वेश्चंस आपको खुद से करना है कि इनमें आपको बिग वर्ड जो दिया हुआ है उसका मीनिंग जो है आप लोगों को डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है। हेयर बिग मीन्स लार्ज इन द साइज। Now consult a dictionary and find out the meaning of the big in the following sentences. The first has been done for you, जैसे कि you are big girl now, तो यहाँ पे बिग किस लिए यूज़ किया गया है, ओल्डर वर्ड के लिए, यानी तुम बड़ी हो गई हो। फिर नेक्स्ट है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर, तो आपको अपने कैरियर के लिए एक बड़ा डिसीज़न लेना है, तो बड़ा डिसीज़न मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़न आपको लेना है। फिर देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, ये इनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ से भरा हुआ है, तो बिग आइडियाज़ मतलब इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। दैन क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री, तो यहाँ बिग क्या है, पॉपुलर, हमारे देश में ये बिग जो है वो प्रसिद्ध के लिए यूज़ होगा। फिफ्थ है आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ लता मंगेशकर, तो ग्रेट। सिक्स वन है यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ अ बिग ईटर, तो ग्राउंडमेंट। देन वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, द फादर जेनरियस। देन अंडरलाइन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट ही सेज ही विल एन्जॉय द राइड, तो सेज इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। फादर मैंशन दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, तो यहाँ पे मैंशन जो वर्ड है इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। दैन नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड, तो यहाँ पे टोल्ड वर्ड जो है दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, यहाँ पे आंसर वर्ड जो है आंसर्ड इट इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। बेन टोल्ड हर टू वेक अप हिम, तो टोल्ड वर्ड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। रतन अपोलाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू पार्टी, तो अपोलाइज्ड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसमें आपका सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिविंग इन द बॉक्सेस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब्स हमें दिए गए हैं, इनको हमें नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें फिल करना है। आई एम नॉट अफ्रेड डैश द वुमेन, मैं उस औरत से बात करने में उसको आंसर करने में डर नहीं रहा हूँ, तो रिप्लाइड। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। माई मदर शाउटेड, मेरी मदर चिल्लाए। The children dash that the roads were crowded and noisy, बच्चे जो हैं were complaining, वो शिकायत कर रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो काफ़ी क्राउडेड हैं, भीड़ भाड़ वाली हैं, और वो काफ़ी आवाज़ वाली भी हैं, नॉइसी भी हैं। Perhaps is not a bad sort of chap after all, remarked the man, उस मैन ने उसको रिमार्क्ड किया। फिफ्थ है लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड डैश स्पोर्ट्स टीचर, कि उन्होंने कहा कि जाइए और स्कूल ग्राउंड में देखिए, तो उन्होंने हमें कहा, तो यहाँ कहा के लिए क्या आ जाएगा, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड अस। द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड, तो ट्रैफिक पुलिस उनको क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, तो ऑर्डर्ड आ जाएगा यहाँ पे। सो थैंक यू, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई